اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جس طرح ہم لوگ جان رہے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگ سیکھ رہے ہیں رمضان کے تعلق سے فضیلت، برکتیں، اہمیت کہ کس طرح سے رمضان ہمیں گزارنے چاہیے، رمضانوں میں کیا کریں کیا نہ کریں، تو ہر ایک چیز جو رمضان کے متعلق بہت ضروری ہے وہ ہم لوگ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہوئے ہم لوگوں کو وقت ہو گیا ہے کافی مطلب 2 دن ہو گئے ہوں گے آرام سے، ہے نا، 2 سے 3 دن تو ہو گئے ہوں گے ہم لوگوں کو یہ رمضان شریف کے تعلق سے سیکھتے، لیکن آج بیچ میں نا کچھ مسئلے آ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اب وہ مسئلے حل ہو گئے۔ کل میں نے آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں رمضان کے تعلق سے بتائی تھی، آج اس کے آگے شروع کرتی ہوں کہ رمضان میں نا دوزخ کے جو دروازے ہوتے ہیں، رمضان میں دوزخ کے جو دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی ہے نا، اور جو اس کے دروازے ہوتے ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو جنت ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جو دوزخ ہے اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں نیکیوں کی جو زیادتی ہے اور جو گناہوں کی کمی ہوتی ہے، جو لوگ گناہ گار ہیں یعنی کہ جو گناہ کو انجام دیتے بھی ہیں، وہ نفس امبارہ یا اپنے ساتھ شیطان حمزات کی بہکانے سے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا ہے کہ ایک بات بتاتی ہوں، یہ بات بالکل حق ہے کہ بھائی دیکھیں شیطان بہت زیادہ جو ہے برگلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے نا، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا نا، اس کو ایک طریقے سے ایک پازیٹیو پوائنٹ سمجھ لیا۔ کس طرح سے کہ بتاؤ ہے میں اچھی خاصا نماز پڑھنے جا رہی تھی اور ایسا ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، بتاؤ ہے شیطانی حرکتیں۔ تو کیا ہے نا، کچھ جو خود کی بھی چیزیں ہیں نا وہ بھی ہم نے شیطان کے اوپر لگا دی۔ مان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو جب حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ بھئی سجدہ کر لیں، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا تھا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کون تھا جس نے سجدہ نہیں کیا تھا؟ ہاں تو اب بتائیں، تو وہ تو خود ہی شیطان تھا، تو اس کو کون سا شیطان بھڑکا دے گا نیک کام کرنے سے؟ نہیں، پہلے وہ شیطان نہیں تھا، پہلے شیطان نہیں تھا نا، سب سے بڑا نہیں، تو پہلے فرشتوں کا نا سردار تھا، پھر بعد میں تو فرشتوں کا وہ سردار تھا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ کیا تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، ٹھیک ہے، شیطان نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اب وہ شیطان ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ وہ کیسے بھڑک گیا؟ تو اب کیا ہے کہ اس نے کیا کیا، وہ جو اس کی نفس تھی، وہ کیا ہے نا، شیطان سے بھی زیادہ شیطان ہوتی ہے، جو نفس ہوتی ہے نا انسان کی، جو اندر جو نفس ہوتی ہے نا، وہ بھی چیزیں خراب کرتی ہے۔ تو ہماری نا وہ خود کی غلطیاں بھی ہوتی، لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو سوچا نہیں۔ لیکن یہ موقع کب ملتا ہے پتہ ہے ہمیں؟ رمضان میں، جب شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ عبادتوں میں خلل پیدا نہ ہو، پھر بھی انسان کیا کرتا ہے؟ آلس دکھاتا ہے،
नमाजें नहीं होती, फजर भी जो है आराम करते करते निकल जाती है, सो जाता है इंसान। फिर उस वक्त में हम कैसे ब्लेम करेंगे शैतान को, जब वो शैतान उस वक्त में है ही नहीं। तो ये क्या है ना, वो एक ऐसा मौका आता है ना जिससे हम अपनी खुद की रियलिटी पहचानते हैं, ठीक है। तो वो जो रियलिटी है, हमारी जो नफ्स है ना, उसको हमें काबू में करना है। और ये काबू में करने का काम हमें रमज़ान से पहले पहले करना है। और ऐसा करना है कि ऐसा अमल हो जाए कि अब चाहे रमज़ान भी ना हो, नॉर्मल डेज हो, तब भी हम क्या करें, अपने काम को अंजाम दे सकें, ठीक है। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे क्या बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं होता। जो रमजान है, रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं होता। यानी कि जैसे भाई सहरी हो गई, अफ्तार वगैरह की, है ना। तो ये जो हम लोग जितना चाहे उतना बनाएं, जितना चाहे उतना कुछ भी करें, लेकिन हिसाब किताब नहीं होता। अच्छा, आगे बोल रहे हैं कि आखिरत में रमजान और कुरान, रोजा, है ना, रोजेदार की शफात के बास बनेंगे। यानी कि जो आखिरत होगी, जब हमारा सवाल और जवाब हो रहे होंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारा नामा अमाल देखेगा, तमाम चीज़ें जब हमारे साथ होंगी, तो उस दिन क्या होगा ना, जो रोज़ा है और जो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान शरीफ है, तो वो क्या करेंगे ना, हमारी मगफिरत का जरिया बनेंगे, ठीक है। रमज़ान इरशाद फरमाएगा कि मौला अज़्ज़ व जल, मैंने ये वाले शख्स को खाने पीने से रोका था, और जो कुरान शरीफ है वो जो है अल्लाह ताला से इरशाद फरमाएगा कि या रब, मैंने ना इनको अपनी तिलावतों में मसरूफ रखा, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये हमारी शफाअत के जरिया बनेंगे। कौन? हम जो पारा वगैरह पढ़ते हैं, हम लोग जो सूरतें वगैरह पढ़ते हैं, हम जो रोज़ा रखते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है, हम बहुत ही ज़्यादा हमारे शफाअत का जरिया बनेंगी। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम लोग जब एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले जो हम लोग कुछ भी चीज़ें बनाते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, तो उस वक्त में तो बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ना। अल्लाह, इतना सब कुछ लिखना है, ये पागल हो गए, स्कूल वाले चेक वेक तो कुछ करेंगे नहीं, और बस ये कॉलेज वाले दे देते हैं उठाकर। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तब हमें लगता है कि अल्लाह एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, तो उस वक्त हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है कि चलो भाई, अगर इसमें मार्क्स कम आए तो जो हमने वो कुछ भी बनाया था पहले, असाइनमेंट वगैरह, उसके ज़रिए हमें मार्क्स दे दिए जाएंगे, है ना। तो वो क्या है ना, हम पीछे से जो हम लेके चलते हैं वो हमारा आगे बहुत काम आता है ना। अगर हमने पीछे की चीज़ें ख़राब की हैं तो आगे हमारे लिए नुकसान ही होगा, और हमने अगर पीछे की चीज़ें अच्छी की हैं तो हमारे आगे के लिए फ़ायदा ही होगा। तो अगर हमने रोज़े रखे हैं, पारे वगैरह पढ़ी हैं, सूरतें वगैरह पढ़ी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत के दिन वो हमारे बहुत काम आने वाला है। और उस वक्त हमें बहुत खुशी भी होगी कि अल्लाह, अच्छा हुआ कि हमने ये सब चीज़ें की थी, है ना। तो ये हमें अपने अपने जहनों में बहुत अच्छे से महफूज रखना है। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे शायद फरमा रहे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हर कैदी को छोड़ देते थे। हुजूर जो है रमज़ान के महीने में जो कैदी होते थे उनको छोड़ देते थे, और हर साइल को आता फरमाते थे। यानी कि जो भी कोई मांगने वाला होता था, गरीब होता था, कुछ भी होता था, हर एक उसको जो है ना देते थे। रब तबारक व तआला भी रमज़ान में जहन्नुमियों को छोड़ देता है, लिहाजा चाहिए कि रमज़ान में नेक काम किए जाएं और गुनाहों से बचा जाए। जो जहन्नुमी है ना, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देता है ना। इतना गुनाह करके जो जहन्नुम में होते हैं, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देता है। तो हमारे लिए कितना गोल्डन चांस है कि अभी हमारी ज़िंदगी बाकी है, रमज़ान हम बस पास में आने ही वाला है। तो जितना हो सके हमें नेक अमल करना है। अच्छा, आगे क्या है कि जो है कुरान जो है अल्लाह तबारक व तआला का इतना मुक़द्दस, तो इसमें सिर्फ रमज़ान शरीफ ही का नाम लिया गया,
है ना, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेहतरीन बुक हम नाजिल फरमाई जो हर किसी के घरों में मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ रमज़ान का ही नाम लिया गया, और ये इसका क्या है ना, फ़ज़ाइल बयान हुए। इसमें क्या है, इसके फ़ज़ाइल जो है बयान हुए, कोई दूसरे महीने का नाम नहीं लिया, ठीक है। और नाम और कहने का मकसद ये है कि महीने तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला का पारे वगैरह 30 मुकम्मल पारे हैं, तमाम चीज़ें, उसमें क्या है ना, सिर्फ रमज़ान का जिक्र किया, रमज़ान के बारे में बयान किया गया। तो ये क्या है ना, रमज़ान की भी बहुत बड़ी बरकतें हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में इफ्तार सहरी के वक्त दुआ कबूल होती, यानी कि इफ्तार के लिए जब बैठें और जब सहरी खाकर इफ्तार से पहले जब हम दस्तरखान लग जाता है, हमारा इफ्तारी लग जाती, कितना बेहतरीन मंजर होता है, उस वक्त में जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, और सहरी के बाद जो दुआ मांगी जाए वो भी कबूल होती है, ठीक है। और रमज़ान में 5 हरूफ हैं, रॉ, मीम, वाद, अलीफ, नून और रॉ। इससे मिलकर क्या बना, हमारा रमज़ान बना, ठीक है। अब इसकी जरा खुसूसियात जान लीजिए कि भाई रॉ आ रहा है रमज़ान में, ठीक है। तो रॉ से क्या है मुराद, रहमतुल्लाही। रॉ से जो मुराद है वो है रहमत, ठीक है। मीम से मुराद क्या है, मोहब्बत। दौद से मुराद है, क्या मुराद है, दौद से दमाने इलाही। और जो अलिफ है उससे मुराद है इलाही। और नून से नून यानी कि नूर, अल्लाह तबारक व तआला का नूर। कहने का मकसद क्या है कि रॉ से है रहमत इलाही, मीम से है मोहब्बत, रब की मोहब्बत, है ना। और दौद से क्या है, दौद से दमाने इलाही, अलिफ से है ईमान इलाही, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को क्या करे, अपने ईमान में रखे। और नून से है नूर इलाही। और रमज़ान में 5 इबादत खुसूसी होती है। रमज़ान शरीफ का जो महीना होता है उसमें जो 5 इबादतें हैं वो बहुत खुसूसी होती हैं। रोज़ा, ठीक है, तरावी, और जो है पारे वगैरह पढ़ना, एतिकाफ करना, और रातों में जगना और इबादत करना। तो जो कोई जो है ना सदक़े दिल यानी कि बिल्कुल सच्चे दिल से ये 5 चीज़ों को करेगा, इंशाअल्लाह ताला इन 5 इनामों का क्या होगा, मुस्तहिक होगा। कि किन 5 इनामों का, जो मैंने बताया कि जो रमज़ान के मैंने जो माना बताया कि भाई इसमें 5 हरूफ होते हैं, तो इसमें उसको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी, नूर मिलेगा और इमानत मिलेगी। तमाम चीज़ें जो हैं उसको मिलेंगी, जो ये क्या करेगा, 5 इबादतों को करेगा। तो ये बात हो गई। आगे देखिए बहुत बेहतरीन चीज़ आ रही है कि जन्नत सजाई जाती है। कैसे? हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक जन्नत साल के शुरू से अगले साल तक रमज़ान के लिए सजाई जाती है। यानी कि एक साल से दूसरे साल तक रमज़ान के लिए, रमज़ान की वजह से जन्नत को सजाया जाता है। और फरमाया, रमज़ान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के पत्तों से बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है। और जो हूरें हैं ना, वो अल्लाह तबारक व तआला से बोलती हैं कि अपने बंदों में से ऐसे बंदे को हमारा शौहर बना जिसको देखकर हमारी आंखें ठंडी हों, और वो जब हमें देखे तो उसकी आंखें भी ठंडी हों। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, आगे क्या है? अब आगे इरशाद फरमाया जा रहा है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि शहंशाह ज़ीशान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि रमज़ान शरीफ की हर शब आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनादी,
یعنی کہ رمضان شریف کی جو راتیں ہوتی ہیں تو رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی، یعنی کہ رات سے لے کے صبح تک ایک منادی کہتے ہیں اعلان کرنے والے کو، ٹھیک ہے؟ تو اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان دیتا ہے کیا کہ اے بھلائی مانگنے والے، اور کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی جو ہے سوال کرنے والا، ہے کوئی مغفرت لینے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ فرشتہ جو ہے کہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کوئی توبہ کوئی ہے جس کو بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہو تو ان کی توبہ جو ہے یا جو بھی مغفرت وغیرہ ہے وہ قبول کی جائے، ٹھیک ہے کوئی جو ہے دعا مانگنے والا کہ اس کی دعائیں جو ہے پوری کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر شب افطار کے وقت، ہر شب کب؟ جب افطار کیا جاتا ہے تو افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں 60,000 گنہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ رمضان شریف کا بہت بڑا فضل ہے ہم تمام پر۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ضرور آیا ہوگا، اور اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیے اور آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔